Hello guys. So I was feeling that 2020 is going to be the worst year, but this national educational policy has, uh, made my day today, right? So uh, finally, like after 34 years, this is going to be a biggest change in the history of Indian education, right? कि अब वो दिन चला गया कि वो जो भारी बैग लेके स्कूल जाना, वो बोर्ड्स एग्जाम का प्रेशर होना और वो चॉइस का ना होना कि मेरे को अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो हम पढ़ ही नहीं सकते हैं. Why? Because I don't have a suitable option to study that. So all those days are gone now. Now your days are coming, right? So from my point of view, this is a very wonderful policy. The aim of this policy is to make India a global knowledge superpower. ठीक है. और मैं ये बिलीव करता हूँ कि नए तरीके से पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया. तो ये एकदम उसी डायरेक्शन में जा रहा है. ओके. एंड सो लेट अस सी लाइक फॉर स्टूडेंट्स व्हाट आर द थिंग्स इन दिस पॉलिसी. सो फर्स्ट वी कैन सी दैट सबसे पहला और सबसे गजब का बात इस पॉलिसी में है कि बैगलेस डेज आर एनकरेज थ्रू आउट द ईयर फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ एनरिचमेंट एक्टिविटी, आर्ट्स, क्विज, स्पोर्ट्स, वोकेशनल क्राफ्ट. ये सब के लिए क्या है ना, एक बैगलेस डेज का मतलब बोला कि बैगलेस डेज होना चाहिए स्कूल्स वगैरह में कि बच्चे लोग को एक मतलब डे ऑफ मिले, थोड़ा रिलैक्स लगे बच्चा लोग को. तो दिस इज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव. रोज वही बैग लेके जाना, बैग लेके आना, तो इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग विच नेवर हैज हैपेंड. ओके. देन व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज the policy has reduced the pressure of board exam. Okay, it has reduced the importance of the board exam, which is genuinely, it is very logical also. See, the board exam had become very learning oriented, so this policy is focusing on developing some skills, developing practical knowledge, developing a scientific temper. Okay, so what they have said is that exam can be, so they have tried to conduct, exam can be conducted twice a year in order to reduce the importance and stress of board exam. ठीक है. तो बोर्ड एग्जाम को क्या कर देंगे, अब ये लोग 2 बार लेंगे. ठीक है. क्यों लेंगे 2 बार? क्योंकि they want to reduce the stress of the students. ओके. और एग्जाम में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों मिला के होगा. और क्वेश्चंस विल बी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन rather than learning. So this is a wonderful, thing which they have brought into the new system. And और एक चीज जो हमको बहुत ही क्लासी लगा इसमें is that coding will be taught from class 6 onwards. Students of class 6 will be taught coding in schools as a part of 21st century skill. Okay, so this is wonderful, coding and all. It's like we are heading into a completely new educational system. 6 का बच्चा कोडिंग पढ़ेगा. एंड सी सो एंड वन मोर इम्पोर्टेंट सिस्टम इज दैट हम लोग का जब भी रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो ये उसमें सिर्फ मार्क्स के बारे में ही मतलब ये फोकस किया हुआ रहता है, और अदर थिंग तो कुछ मैटर ही नहीं करता है. कंडक्ट कैसा है नहीं है वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. लेकिन नाउ दे हैव टोल्ड दैट 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनेगा अब से. ओके. एंड सो दिस विल नॉट ओनली इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट द मार्क्स विच दे हैव गॉट, बट it will contain information as in the skills and important points. And जब मैं टीवी देख रहा था तो उसमें in the news channel it was showing that the student will himself give some points and his friends will be giving him some points. So this was a very different logical approach कि ये नहीं हो सिर्फ मतलब ऐसा हो जाने से तो ये एकदम वेरी प्रैक्टिकल थिंग इज हैपनिंग. ओके. कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ मार्क्स सिर्फ याद कर रहे हैं, सिर्फ रट के जा रहे हैं, तो वो कंसेप्ट ही पूरा हटाने का कोशिश किया जा रहा है. थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर, ये सब डेवलप करने का ये लोग ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं. एंड दिस इज वेरी नाइस.
thing. And one more very nice thing which I read about is that they are trying to cut down the syllabus of topics which are least important, so that the student gets time for extracurricular for different kind of activities. For example, a student wants to learn a particular skill or a vocational activity, then he or she will be getting enough time to do it. And this is a very nice thing, very nice thing. And ई लर्निंग को भी बहुत बढ़ावा दिया गया है कि ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करे, ठीक है। और रीजनल लैंग्वेजेस के लिए भी ऑनलाइन ई कंटेंट क्रिएट करने के लिए बोला गया है। और ये भी बोला गया है कि सी इट इज रिटन दैट और क्या क्या है, अच्छा हम लोग देख ही रहे हैं। सी अ comprehensive set of recommendations for promoting online education to the recent crisis of epidemic pandemic in order to ensure preparedness and alertness mode of quality of education। ओके, सो ये भी बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है कि ऐसा पैंडमिक का टाइम है, स्टूडेंट्स कांट गो टू स्कूल, स्टूडेंट कांट गो टू ट्यूशन। तो ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, बट नाउ दे आर टेकिंग एफर्ट्स towards online education, which is also a phenomenal thing. We are luckily we are also now online, so we are also into this direction only. So this is basically a very nice thing. And what other thing have been discussed here? Okay, so one more thing is that they are trying. They have said that a strong focus will be given to develop the vocational skills in the students, and students from class 6 onwards, they will be required to do some internship under local artisans, craftsmen, and all the people who are there. Local business का they will be getting some idea. So this is also a different thing. Like मेरे टाइम में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब कितना इंटरेस्टिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल हमको गार्डनिंग, मेरे को तो बहुत मन था कि हम गार्डनिंग करें या फार्मिंग सीखे, लेकिन ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था कि मतलब ऐसा हम कर सके। तो इसमें अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि स्टूडेंट्स कैन लर्न वोकेशनल डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स। मैं होता तो मैं पक्का गार्डनिंग सीखता। यू ऑल कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट स्किल यू वांट टू लर्न, यू विल बी विलिंग टू लर्न बिकॉज ऑफ दिस न्यू पॉलिसी। सो और ये जो था ना पहले करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर, इसमें अब कोई हार्ड सेपरेशन ये रहेगा नहीं। ओके, so and most importantly, wherever possible, the medium of instruction, at least grade 5 तक, it should be the mother tongue, local language and the regional language। जो भी medium of instruction रहेगा, क्लास 5 तक कम से कम कोई भी मदर टंग होना चाहिए, कोई भी लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। तो ये भी बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अभी नासा में एक स्टडी हुआ था, तो उसमें बोला गया था कि संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, और जैसे सारे लैंग्वेजेस में कुछ ना कुछ एरर निकल रहे थे, लेकिन संस्कृत में देयर वाज नो एरर। ओके, सो संस्कृत इट कुड बी यूज्ड इन एनी काइंड ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है, एंड ऑल। तो दिस वाज रिसर्च व्हिच वाज डन इन नासा। सो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मीन्स अमेजिंग इनिशिएटिव दैट they are encouraging schools, teachers to teach in local languages। लोकल लैंग्वेज और मदर टंग में पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है, ठीक है। कितना ही हम लोग इंग्लिश में बात कर ले या इंग्लिश पढ़ ले, मदर टंग में ही चीज समझ में आता है डायरेक्टली। सो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ओके, सो दिस इज ऑल। आई होप यू गेट अवेयर अबाउट दिस policy, and this was basically for junior students only. So hope you liked the video. Okay, goodbye.